Morning students. In previous video we have finished our area and perimeter, right? Chapter we were doing area and perimeter we have already finished. Now today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11 of class 7, that is practical geometry, right? In practical geometry our first topic is construction of a line parallel to the given line. One line is already given and we have to construct another line which will be parallel to the same, but not with the help of scale only. We will have to use our compass also. See how to construct a line. Suppose we have given a line. One line is given. Dekho. This is a line. This is already given. Right? This is already given. So line, the name of line is AB. We want to construct a line parallel to this, another line. Parallel maybe it may be above or it may be below the line. ये कहीं भी हो सकती है, doesn't matter. But we want to, first of all, what we will do? देखो, हमने पहले कुछ एंगल्स के बारे में सुना है कि लाइन अगर पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, these एंगल आर इक्वल. जैसे मैंने बता देता हूँ, ये these two lines are given and this is third line, this is a transversal. I think we have learned something in this one. Okay, so in this one alternate angle are equal, the lines are parallel, right? Or lines are parallel and alternate angle are equal. So what we will do now, we will make these angle equal this time from our side. Now we will make them equal, that line will be parallel. To see how to construct them, देखते हैं. First of all, draw a line, whatever given, 5 cm, 10 cm, whatever length is there. Okay. Now after that, we will take a point through which we want to draw a line parallel to this one. देखो, this is a point P. Suppose we want to draw a line. This is point P. At this point, we want to draw a line parallel to AB. Correct now? Now what to do? Just join this P to AB. At any point, from any point you can join. आप इसको acute angle में ले सकते हो. आप इसको ऐसे join करो, चाहे इसको आप ऐसे join करो, जैसे अच्छा लगता है वैसे join करो. Doesn't matter. तो मैंने इसको suppose करो ऐसे join कर लिया, ये मैंने join कर लिया. Okay, scale लेना है, properly straight line join कर देना. Okay, after joining, what we will do? We will have to take some R. अब हमें एंगल बनाना है. कौन सा एंगल बनाना है? ऑल्टरनेट एंगल. So first of all, what we will do? We will take compass. This is needle part. I have taken. This is the needle part and this is the. Sorry, this is needle part and this is pencil one. So देखो needle part को हम यहाँ रखेंगे. ठीक है? ये दिख रहा है? ये मैंने कंपास लिया एक तरह से. यहाँ पर कम रखेंगे और यहाँ क्या करेंगे? ऐसे आर काटेंगे ऐसे इस तरह से. Done. No need to change the radius of सर्कल. इस सर्कल की रेडियस चेंज नहीं करनी है, तो सेम हम क्या करेंगे? इस साइड में भी काटेंगे और वो इस तरफ काटेंगे ऐसे. ये डन. एक आर्क ऐसे काटा और इसके ऑल्टरनेट साइड यानी अपोजिट साइड में इस पॉइंट से भी हमने क्या किया? आर्क काट दिया. डन. ओके. आफ्टर दैट जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ आर्क. ये लेंथ दिया आपने, कंपास लिया और इसको ऐसे मेजर किया. ऐसे मेजर करेंगे. ओके. ऐसे मेजर करने के बाद इसको सेम यहाँ ले जाके और आर्क काट देंगे ऐसे. डन. Now we are getting here one more point. One point we have already given. So can you join these two points? When you will join these two points, see this line is parallel to the first line, right? This line will be parallel to the first line, and you have to use scale. Use scale here. Don't do like this when as I am doing here. Okay? तो समझ में आ गया होगा. ये आपको पता करना है और आप आराम से कट कर सकते हो. फिर जो लाइन है, the name you can, this is AB and you can take the name of this line is CD. CD आप ले सकते हो. ये जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है. पैरेलल का मतलब तो समझते हो ना? Two line which never meet to each other, like rail track, है ना? ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, सीधी चलती जाती है, चलती जाती है. These are called parallel line. समझ में आ गया होगा? ये था पैरेलल लाइन ड्रॉ करना. एक पॉइंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw a parallel line to the given line at a distance. At a distance given.
अब देखो डिस्टेंस मालूम कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, यहां क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पे करेंगे हम, एट ए डिस्टेंस ऑफ सपोज 5 सेंटीमीटर। एक लाइन है, उस लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने क्या करना है, अलग लाइन, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन। ओके, ड्रॉ कर दिया हमने। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, चलो वापस से करता हूं मैं सीधी लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हमें अनदर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब अनदर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, देखो ये लाइन ए बी है, मैंने फिर से नाम रख दिया इसका ए बी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस लाइन, कहीं भी ले लेंगे आप ये पॉइंट, ठीक है। एनी, हमने ये पॉइंट ले लिया, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, मींस अ लाइन व्हिच इज एट राइट एंगल टू द लाइन, इस लाइन से वो राइट एंगल के ऊपर होगी। ओके, अब ये राइट एंगल पे होगी तो कैसे करेंगे, हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे, और कंपास में क्या करेंगे, कंफर्टेबल रेडियस का फिल करेंगे, है ना। कंफर्टेबल रेडियस, कंफर्टेबल रेडियस का मतलब होता है जितना चाहे आप खोल लो, प्रॉपर होना चाहिए, आपको वर्किंग में आना चाहिए। ये हमने क्या किया, उसको ओपन किया, करेक्ट ना। हमने क्या किया, मिडिल पार्ट को यहाँ रखा और एक आर्क ऐसे काट दिया, देखो ऐसे सेमी सर्कल, डन। ये सेमी सर्कल मिला ना, ये हमारा मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, एंड दिस इज द आर्क। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क के दो तरीके हैं, देखो, या तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, या आप एंगल बना लो। अब एंगल बनाएंगे तो कैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना। एक साइड से हम क्या करेंगे, आर्क काटेंगे, ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री का जो हाफ होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। जहां से 60 डिग्री का आर्क काटा है हमने, यहां से काटा है हमने 120, और 120 और 60 का जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमने क्या मिला आपको 90 डिग्री, एंड देन दिस पॉइंट जॉइन दिस वन। मैं एक तरीका और बताऊंगा इसका आसान सा, ये जॉइन कर दो, जॉइन कर दिया। ये जॉइन करने के बाद ये 90 डिग्री पे बनाना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा स्केल से सीधा जॉइन कर देना है। और जॉइन करने के बाद वी नीड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, एंड कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो ऐसे, देखो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट इज at 5 centimeter distance from this line AB. Why? Because this is 90 degree. 90 degree पे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, right? Now one more angle you can draw here also, right? एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनाएंगे, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अगर हम इसके 90 डिग्री लाइन बनाएंगे तो इसके पैरेलल नहीं होगी, will be right? So यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल, कंपास लेंगे और यहाँ से आर्क काट देंगे ऐसे करके, करेक्ट ना। फर्स्ट आर्क विल बी फ्रॉम हियर 60, सेकंड आर्क विल बी 120, एंड देन मीडियन ऑफ दीस टू, इनको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सीधी लाइन आती है। ये ध्यान देखो, ये एंगल बना, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, इट मीन दीस टू आर पैरेलल, सो दिस इज AB एंड दिस इज सपोज CD, एंड हियर AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB is parallel to CD, ये जो साइन है वो पैरेलल का है, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, हम पैरेलल बोलते थे इसको, करेक्ट ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन AB एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेलिंग 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, पैरेलल टू द गिवन लाइन AB लाइन गिवन है, दैट्स ओके, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, बाकी सब तो सेम है, एवरीथिंग इज सेम, हियर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस हमने 5 ली थी, आप यहाँ 2 ले लो, इफ इट इज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दिस इज सेम क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर 11.1। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, मेक 90 डिग्री एंगल, then cut an arc of 2 centimeter, then here make 90 degree angle and join
these two will be parallel to each other. Okay, done. This was your first question, and similarly you can do B also. B same as it is. Okay, next question is, construct a line L parallel to the line M from a point outside it using the idea of equal corresponding angle. Right? Just before I make you understand this thing, okay? देखो, I'm just writing here question. Okay? Now see, I have written here your question number 2, and the question number 2 is, construct a line parallel to the given line. We have done this one already. First जो हमने सीखने की कोशिश की थी ना, that was the same. Line M from the given point outside it. First of all, we will draw a line M. See, take your scale. There is no measurement given, so what we will do? Just draw a line simply. Draw कर ली हमने, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, है ना? सीधी नहीं आ रही ना? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. अब इस स्ट्रेट लाइन के, this one is M. See, given line M, given, this is given. So given है तो हमारे पास क्या है? M given है, हमने M ड्रॉ की. Okay. After that we have to draw a line L parallel to this one. फिर क्या लिखा है इसमें? From a point outside it. Outside. Outside कहाँ हो सकता है? इसके बाहर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. Outside the line. Outside the line, suppose we have taken this point here. ये मैंने point ले लिया. This one is suppose point P. P I am taking here. This is line M. This is point P. From point P, we have to draw a line parallel to the given line. समझ में आ रहा होगा? अब इस लाइन के पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो. First of all, we will join this line. है ना? कहीं भी ज्वाइन कर लो, यहाँ यहाँ यहाँ, anywhere which you like, where you like, ऐसे ज्वाइन कर लो. ज्वाइन कर लिया आपने, है ना? इस लाइन को थोड़ा और लंबा कर लेते हैं. ये सही है. अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया. After joining, what we will do? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, और कौन सा होता है? ऑल्टरनेट एंगल. वही तरीका है हमारे पास. हमने क्या किया? कंपास लिया और इसको खोल लिया. ठीक है. और हमने क्या किया? आर्क काटना शुरू किया. इसको आर्क काटेंगे ऐसे, देखो आर्क काटेंगे ऐसे. राइट? फर्स्ट आर्क ऑफ द सेम रेडियस, इसके ऑल्टरनेट साइड में, अपोजिट साइड में. ऑल्टरनेट साइड समझते हो ना? अगर ये राइट में है तो क्या करेंगे? लेफ्ट में है तो हम क्या करेंगे? ऐसे काटेंगे. इस टाइप में आएगा इस पॉइंट से. देन मेजर द लेंथ ऑफ आर्क की मेजर की हमने, और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे मेजर की, और हमने क्या किया? ऐसे आर्क काट दिया. गॉट इट? नाउ वी हैव टू पॉइंट, वन पॉइंट दिस वन, सेकंड पॉइंट दिस वन. इन दोनों क्या करेंगे? जॉइन कर देंगे. डन. दिस इज लाइन L and this is line M. This is line L parallel to the given line M through point P outside the line. Right? Everything are you getting? ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप इजीली बना सकते हो. This was your question number 2. This was number 2. Okay. Now 2 we have done. Now we will talk about question number 3 and last. Okay. So first I will write the question number 3. Now here I have written here, this is the next and last question of this exercise. This is last. After this one we will have to start a new exercise 11.2. Okay. Now see, question number 3 is draw a line AB. सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB. कर लेंगे. Then draw a perpendicular to AB from any point on it. Okay. So one by one we will do this work. Any point on it. On this perpendicular, mark a point C 3 centimeter away from AB. 3 centimeter away. Okay. After that, through the C, draw a line PQ parallel to AB. Right? PQ parallel to AB. So first of all, what we will do? Draw a line AB. First, our work is what we have to draw a line AB. तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे AB. ये हमने AB लाइन ड्रॉ कर ली. This is A and this is B. Right? ये देखो हमारा काम खत्म हो गया इतना. This one. ये हमारा काम खत्म हो गया. Done. उसके बाद draw a perpendicular to AB at any point on it. कहीं भी कोई पॉइंट ले लो. हमने ये पॉइंट ले लिया सपोज. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का आसान सा तरीका बता देता हूं मैं. क्या करना है? ऐसे लेना है
और ऐसे सेंटर बना देंगे, राइट। वी हैव 2 पॉइंट, 1 पॉइंट दिस वन, 1 पॉइंट दिस वन। हम क्या करेंगे, इसको आर काट देंगे, मोर देन हाफ ओपन एंड दिस वन, ऐसे ऐसे करके हम आर काट देंगे और ये जो पॉइंट मिला है ना 2, ये दोनों पॉइंट का ज्वाइन कर देंगे। आर यू गेटिंग? थोड़ा सा एंगल पे आ रहा है, 90 डिग्री से बाहर है, तो फिर से बनाते हैं इसको, है ना। देखो यहां से पॉइंट लेंगे, एक आर्क ऐसे काट देंगे फ्रॉम हियर, सेकंड आर्क, एंड दिस शुड बी परपेंडिकुलर, राइट, लाइक दिस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, देखो व्हाट वी हैव फिनिश्ड, 2AB at any point on it, क्या तक हो गया, on this perpendicular mark a point C, इस परपेंडिकुलर पे पॉइंट C मार्क करना है 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम AB, यहां से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर यू कैन टेक कंपास, करेक्ट ना, कंपास में 3 सेंटीमीटर फिल करेंगे और 3 सपोज करो यहां 3 सेंटीमीटर आ रहा है, आप देख सकते हो ना, तो हम ऐसे एक आर्क काट लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर अवे है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज C, दिस इज C। नाउ ये खत्म हो गया आपका काम, दिस वन फिनिश, अवे फ्रॉम AB, थ्रू C draw a line parallel to AB, draw a line parallel to AB। अब AB के पैरेलल C पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, सेम वही है। अब देखो 90 डिग्री तो था ही ना, यहाँ 90 डिग्री बना दो, वो अपने आप पैरेलल हो जाएगी, बना सकते हैं ना। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे एंगल, ये देखो ऐसे आर्क काटो, फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क, फर्स्ट इज 60 देन 120 और इनका मिड वैल्यू निकालेंगे, आता है ना मिड वैल्यू, यहां से फर्स्ट आर्क कर देगा, यहां से सेकंड आर्क एंड देन जॉइन लाइक दिस, राइट, ये जॉइन हो गया, डन। ये जॉइन होने के बाद ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नेम वी हैव टू राइट P एंड Q, दिस इज योर 11.1, right? We have finished all 3 questions. 3 were there only. 3 will be asked, and then the next 11.2 we will do in next video. This much is enough. Thank you. Have a nice day.